be, we would be diving into the knowledge, and knowledge is really power for professionals. What is most important is knowledge. If we are updated, if we are knowledgeable, then we can give very good guidance and very good advice to our clients. So I would request all the members of CMA CNCS fraternity to just enjoy this session, being the very renowned and very excellent speakers we have for the day. Briefly, I would be touching upon the first speaker, Ram Akshay ji, his profile. I would be giving his brief introduction before moving. Well, Ram Akshay ji, a commerce graduate, he is a fellow chartered accountant, having more than 15 years of experience in indirect tax matters. He started his career with Reliance Industries, Mumbai, taking care of the corporate legal compliance cell. Moving on, he worked with PwC and EY. Then he led the indirect tax COE at E&Y Gurgaon. He has also worked with SS Kothari Mehta and Company as director in its IDT practice. Since 2019 beginning, he has started his own specialized practice in GST, and he is giving excellent and quality service all over. Well, his main and core area is GST, customs, VAT and service tax. He is working with some of the Fortune 500 clients across India. He is a great speaker, writer on GST matters. He has given a lot of contribution to many publications like Economic Times, E-commerce Operator, etc. The range of clients he deals with oil and gas, petrochemicals, pharma, agriculture, real estate, infrastructure, housing, FMCG, so on and so forth. I think no sector is left, Ram Akshay ji. You are taking care of many sectors. So he has handled the implementation of GST in a lot of corporates, and he is providing great service to many corporates and doing excellent client service. This is a very rich, one of the richest resume I have seen across in last many few years. Thank you. Thank you very much. Our Anil Thakurji has got the privilege of having such learned and great experts. And we also enjoy these sessions being organized by Faidawad Chapter Committee. So not taking much of the time more, I would request Ram Akshay ji to proceed with the proceedings and just sail us and swim us through across the very hot topic called RCM, reverse charge mechanism. Ram Akshay ji, please. Thank you very much, Deepak ji, for such a wonderful introduction you have given. I have just started my career. 15 years is not very much time period I have spent. But after qualifying, I started my journey in indirect tax. First of all, Anilji, thanks for inviting me on this webinar and for such a nice topic, RCM. So I will do one thing. I will speak in Hindi because हमारे listeners अच्छा समझते हैं हिंदी. And बीच-बीच में कहीं-कहीं ऐसा terms आएगा. Over there I will use that particular terms in English. So it's better for everybody to have clarity. I will speak in Hindi. Right, sir? Yes. Please, जी sir, बिल्कुल. हमारी मातृभाषा है सर, मातृभाषा का प्रयोग सबसे सर्वोपरि है. Usually it's better to speak in the language which is understood by most of the listeners. Very true, sir. Please. Right? दीपक सर इंट्रोडक्शन भी हिंदी में करते फिर. No problem. ये एक बार हिंदी में और कर दो. अरे ठीक है. हिंदी के ऊपर भी हिंदी में क्वेश्चन ठीक है. So to start with, हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं, this is reverse charge under GST law. So to start with, what is reverse charge? हमें ये समझना पड़ेगा. नॉर्मली क्या है, RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को RCM कहा जाता है. ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कोई ऐसा नया टर्म नहीं है जो GST में आया है. ये सर्विस टैक्स में भी था. आपको यदि याद हो तो सर्विस टैक्स में भी RCM हुआ करता था.
उस टाइम सर्विस टैक्स में कभी 100% किसी सब्जेक्ट पे आरसीएम पे करना होता था, किसी ट्रांजेक्शन पे, किसी पे 50%, किसी में 25% था। बट अब उसको साइड में रखते हैं, जीएसटी में क्या है, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द definition in GST, what are the procedures, what are the requirements under the GST law, that we have to understand first. तो हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले किसी भी एक्ट के अंदर जो चार्जेबिलिटी होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन से आती है, ये आई थिंक एवरीबडी नोज दिस। वो चार्जेबिलिटी आती है अंडर आर्टिकल 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वहां पे साफ कहा गया है कि you cannot collect tax, यानी a state cannot collect tax except by the authority of law। साफ साफ कहा गया अंडर आर्टिकल 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जितने एक्ट बनते हैं उस एक्ट को जो राइट मिलता है टैक्स कलेक्ट करने का, वो कहां से मिल रहा है? आर्टिकल 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिल रहा है। अब सबसे पहले जो एक्ट के अंदर टैक्स का कलेक्शन होता है, वो एक्ट के अंदर एक चार्जिंग सेक्शन होता है, चार्जेबिलिटी होती है उसकी। वो उस चार्जिंग सेक्शन के अंदर ही टैक्स को कलेक्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बिना टैक्सेबिलिटी के, बिना चार्जेबिलिटी के कोई भी टैक्स कलेक्ट कर सके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट दिया है टैक्स कलेक्ट करने का, वो पर्टिकुलर एक्ट के लिए दिया है, तो वो एक्ट के अंदर भी एक चार्जेबिलिटी होती है, एक चार्जिंग सेक्शन होता है जो ऑथोराइज करता है कि किन चीजों पे, किन परिस्थितियों में टैक्स कलेक्ट होगा। Therefore, किसी भी एक्ट के अंदर चार्जिंग सेक्शन इज अ मस्ट। बिना चार्जिंग सेक्शन के टैक्स कलेक्ट नहीं हो सकता। Here today we are talking about reverse charge mechanism। आप देखिए रिवर्स चार्ज में चार्ज वर्ड आ रहा है। सो इस चार्जेबिलिटी, इस चार्ज वर्ड का मतलब है कि देयर शुड बी अथॉरिटी फ्रॉम द लॉ। अब ये अथॉरिटी लॉ में, एक्ट में कहां से डिराइव हो रही है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। जो एक्ट में जो अथॉरिटी डिराइव, आरसीएम के लिए जो डिराइव हो रही है सर, वो आरसीएम के लिए अथॉरिटी डिराइव हो रही है अंडर सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 9 से ये अथॉरिटी डिराइव हो रही है। सो देयरफॉर ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म समझने के लिए, रिवर्स चार्ज, चार्ज वर्ड, इस चार्ज वर्ड की वजह से हम कहाँ जा रहे हैं? चार्जिंग सेक्शन ऑफ सीजीएसटी एक्ट। आपको पता है कि जीएसटी में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्ट, 3 एक्ट्स, बेसिकली 4 हैं जो चार्जेबिलिटी को ड्राइव करते हैं। फर्स्ट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, देन आता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, फिर आता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, एंड स्टेट की जगह कई बार यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट भी आता है। तो इनकी चार्जेबिलिटी वहीं से डिराइव हो रही है। अब ये आपको पता है कि ये जो जीएसटी लॉ है, सेंट्रल भी लेवी करता है, स्टेट भी लेवी करता है। पहले क्या था, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एक एक्ट लेवी करती, जैसे एक्साइज सर्विस टैक्स, वैट स्टेट लेवी करती थी। बट यहाँ पे कंकरेंट पावर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी, अंडर सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट एंड आईजीएसटी एक्ट। उस कंकरेंट पावर को जो सीजीएसटी एक्ट है वो डिराइव कर रहा है। तो सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड चार्जेबिलिटी ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों को क्लैरिटी आ गई है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए कहाँ से चार्जेबिलिटी आ रही है। तो अनिल जी, जो आप कह रहे थे चार्जेबिलिटी के लिए, जी सर, वो चार्जेबिलिटी सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट से डिराइव हो रही है। कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन जो आईजीएसटी एक्ट में है वो है सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। ठीक है जी सर। अब ये जो चार्जिंग सेक्शन है, हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज, हाउ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज वर्किंग, हाउ गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग टैक्सेस अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। अब ऐसा नहीं है कि सरकार ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया और इसमें टैक्स कलेक्ट कर दी है, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। सरकार ने अथॉरिटी लिया है, वो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एक्ट में ही लिया है और उसी के बिहाफ पे वो टैक्स कलेक्ट कर रही है। अब आते हैं, तो सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट जो है, बेसिकली उसमें आप देखेंगे ना तो 4 सेक्शन है।
4 सेक्शन है। पहला सेक्शन है वो बात करता है फॉरवर्ड चार्ज की, वो बात करता है फॉरवर्ड चार्ज की। जैसे एक सप्लायर है, जब वो सेल करता है, कुछ भी गुड्स या सर्विस सप्लाई करता है, तो वो सप्लायर कैसे टैक्स कलेक्ट करेगा, किस रेट से, किस वैल्यू पे, किस मैनर में, ये उसकी बातें करता है। कौन सा? सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 9 जो है वो ये बातें करता है कि वो कौन कौन से गुड्स हैं जिसपे जीएसटी नहीं लगता है। हालांकि सबसेक्शन 1 में भी वो उन्होंने अल्कोहल को एक्सक्लूड किया है, अल्कोहल या लिक्कर को एक्सक्लूड किया है, लेकिन सबसेक्शन 2 में स्पेशली 5 प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड किया है उन्होंने। वो आपको पता है, क्रूड ऑयल है, डीजल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है एंड एटीएफ है, एविएशन टरबाइन फ्यूल है। तो इन 5 चीजों को इन्होंने एक्सक्लूड किया है। लेकिन सबसेक्शन 3 जो है ये बात करता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में। तो आप देखें, सॉरी बैटरी लो हो गई। तो सबसेक्शन जो 3 है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में बात करता है। इतना ही नहीं, सबसेक्शन 4 जो है वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में बात करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइजेस कि सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में क्या डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसेक्शन 3 जो है इसमें ये कहता है कि गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन इशू कर सकती है और स्पेसिफाई कर सकती है कि इस पर्टिकुलर सप्लाई गुड्स पे या सर्विस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर टैक्स कलेक्ट करेंगी। मैं आपको आगे बताऊंगा कि रिवर्स चार्ज का मीनिंग क्या होता है, वो मैं डेफिनेशन के थ्रू बताऊंगा। तो इसमें अंडर सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, राइट्स आर गिवन टू द गवर्नमेंट to collect tax, to notify those products, those services on which tax may be collected by the state under reverse charge mechanism. लेकिन ये जो राइट दिया गया है, दिस इज सब्जेक्ट टू रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी काउंसिल क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। नहीं भी पता होगा तो आप अलग से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो भी एक अलग सब्जेक्ट है। तो जीएसटी काउंसिल ही सब चीज रिकमेंड करती है। एक्चुअली गाइडिंग अथॉरिटी वही, कंट्रोलिंग अथॉरिटी वही है अंडर जीएसटी लॉ। तो वो रिकमेंड करती है, फ्रॉम टाइम टू टाइम मीटिंग्स होती हैं उनकी, और उसमें रिकमेंडेशन आता है कि इस गुड्स पे, इस सर्विसेज पे टैक्स लगेगा, क्या लगेगा, जो भी है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय देम। और उसके बाद गवर्नमेंट जो है कॉरस्पॉन्डिंग नोटिफिकेशन इशू करती है, और फिर उस नोटिफिकेशन के बेस पे वो टैक्स उस हिसाब से चेंज होता है, अमेंडमेंट होता है। सबसेक्शन 3 जो अब आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये सिंपली कहता है कि गवर्नमेंट रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स कलेक्ट करेगी उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पे जो नोटिफाई किया जाएगा। ध्यान रहे, जो नोटिफाई किया जाएगा, यानी नोटिफिकेशन इशू होगा इन चीजों पे। सो देयरफॉर हमें कहाँ जाना होगा? नोटिफिकेशन पे जाना होगा। हमें वो नोटिफिकेशन चेक करना होगा कि वो कौन से नोटिफिकेशन हैं, उसमें क्या क्या चीजें गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, दैट विल सी। अब सबसेक्शन 3 की विशेषता ये है कि इस केसेस में कहा गया है कि रिसिपिएंट जो रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स देगा, वो टैक्स कैसे देगा, किस परिस्थिति में देगा। अब क्या है, मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। बेसिकली जब भी ट्रांजैक्शन होता है तो एक सप्लायर होता है, एक रिसिपिएंट होता है अंडर जीएसटी लॉ। जो सप्लायर है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो भी सकता है और जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं भी हो सकता है, ये तो क्लियर है। रिसिपिएंट है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो सकता है, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो रिसीवर है, रिसिपिएंट है, उसको जीएसटी में रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है यदि वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म उस पर एप्लीकेबल होता है। तो देयरफॉर जब भी हम बात करें रिसिपिएंट की, तो ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ, दैट्स व्हाई ही इज लायबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर आरसीएम बेसिस, रिवर्स चार्ज बेसिस। अब जो रिसिपिएंट है वो तो रजिस्टर्ड है, लेकिन सप्लायर रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में नॉर्मली होता है कि सप्लाई, नॉर्मली फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर टैक्स पे करता है, लेकिन रिवर्स चार्ज में जो रिसीवर होता है, जो कस्टमर होता है, वो जो बाई करता है, इनवर्ट सप्लाई करता है, उस इनवर्ट सप्लाई पे वो टैक्स देता है। तो देयरफॉर यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि रिसीवर जो है वो किससे बाई कर रहा है कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस से। तो यदि सप्लायर रजिस्टर्ड है
और अनरजिस्टर्ड है, किसी भी परिस्थिति में सब सेक्शन 3 अप्लाई हो जाएगा। लेकिन सब सेक्शन 4 जो है वो तभी अप्लाई होगा जब सप्लायर जो है वो अनरजिस्टर्ड हो। ध्यान रहे, ये दो चार्जेबिलिटी है। सब सेक्शन 3 में सप्लायर आपका रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, लेकिन अंडर सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9 ऑफ CGST एक्ट सप्लायर जो है अनरजिस्टर्ड ही होगा। ये बेसिक डिफरेंस है। तो जब भी, लेकिन ध्यान रहे ये दोनों सब सेक्शन 3 एंड सब सेक्शन 4 ये दोनों रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की चार्जेबिलिटी को बताता है। तो यहाँ तो मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है। अनिल जी क्लियर है? दीपक जी ये क्लियर है? बिल्कुल Yes, क्लियर है सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बिल्कुल क्लियर है सर। मैं यहाँ पे एक एजम्पशन लेके चलूंगा कि आप दोनों ने यदि हाँ कर दिया कि हाँ समझ में आ रहा है, तो मैं मान के चलूंगा बाकी सारे ऑडियंस को समझ में आ रहा है। नहीं सर, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो देयरफॉर ये दोनों डिफरेंस है। तो जब भी मैं आगे आने वाले टाइम में बोलूँ सबसेक्शन 4, इट मींस कि सप्लायर वहां अनरजिस्टर्ड है, लेकिन रिसीवर जो है, कस्टमर जो है वो GST में रजिस्टर्ड है। जब भी मैं यूज करूं सबसेक्शन 3 तो आप समझ जाएं सप्लायर रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, लेकिन रिसिपिएंट या कस्टमर जो है वो रजिस्टर्ड ही होगा। ये क्लियर है? सर एक छोटा सा क्वेरी है कि 4 की हाँ, जरूरत बताइए। हमें क्यों पड़ती है सर? जब आगे 3 में बताते ऑलरेडी हैं। रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड है तो 4 की जरूरत क्यों पड़ी हमें? आगे बताते हैं। जी जो 4 सबसेक्शन आया ना, इसके पीछे लॉजिक था कि हर बिजनेस सुबह से शाम तक बहुत सारे पेटी एक्सपेंसेस करते हैं, राइट? सुबह से शाम तक आप देखेंगे चाय है, कॉफी है, दिस दैट दुनिया भर का। तो मुझे जो लगता है इसके पीछे ये होगी कि जो जिसको हम सबसेक्शन 3 में कवर नहीं कर सकते उसको सबसेक्शन 4 में स्पेशली हम अनरजिस्टर्ड की कैटेगरी में डाल के कवर करेंगे। तभी जाके आपको याद हो तो स्टार्टिंग में सबसेक्शन 4 में 5000 तक का एक जेम्सन था, उसके ऊपर यदि आप कोई बाई करते हैं तो यू आर लायबल फॉर पेइंग टैक्स ऑन RCM बेसिस। यस धीरे धीरे चल के इसको ये 5000 को पहले एग्जेम्प्ट किया, फिर इसके बाद ये प्रोविजन को ही मतलब अमेंड कर दिया, और उसके बाद वो जो रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन आया था उसको रिसिंड ही कर दिया। वो आगे स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा। तो मुझे लगता है कुछ ऐसा आइडिया रहा होगा लॉ मेकर्स का। लेकिन सबसेक्शन 3 में जो है मैक्सिमम जो है रजिस्टर्ड है, लेकिन कुछ केसेस जो बाहर से आ रहे हैं, मतलब उसमें क्या है कि सबसेक्शन 3 में कंपलसरी उसको कहा गया है कि आप जो सप्लाई करेंगे उस पर टैक्स देना पड़ेगा रिवर्स चार्ज में। वो चीजें हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे। अब सबसेक्शन 5 को भी कुछ टैक्स पेयर्स, आप मार्केट में यदि गूगल पे आप खोजेंगे ना, गूगल पे आप यदि ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं तो उस केसेस में आप पाएंगे कि सबसेक्शन 5 को भी लोगों ने रिवर्स चार्ज की कैटेगरी में डाला है। कई राइटर्स ने लिखा है ये सबसेक्शन 5 में भी RCM है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर पे अप्लाई होता है, और ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी टैक्स पे करना पड़ता है। वो मैं बताऊंगा कैसे पे करना होता है, क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर एक प्लेटफॉर्म है अमेजन फ्लिपकार्ट की तरह, उस पर सप्लायर भी रजिस्टर्ड होते हैं और कस्टमर भी सब रजिस्टर्ड होते हैं, और वो जो भी खरीदते हैं तो नॉर्मली क्या है वो मार्केट प्लेस के थ्रू ट्रांजेक्शन होता है। तो कहा गया है वहां पे कि सप्लायर के ब्याह पे कई केसेस में जो प्लेटफॉर्म है जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, जैसे फॉर एग्जांपल जोमेटो, स्विगी, इन सबको टैक्स पे करना पड़ेगा, मेक माई ट्रिप, इन सबको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वैसे केसेस के लिए सबसेक्शन 5 में कवर किया गया है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। ध्यान रहे ये जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी, मेक माई ट्रिप, ये सारे जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के डेफिनेशंस में आते हैं। तो उनको कुछ केसेस में सर्टेन केसेस नोटिफाई किया गया है जिसपे उनको टैक्स देना होता है, न कि सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज को। बेसिकली ये सबसेक्शन 5 सर्विसेज के केस में ही अप्लाई होता है। तो बेस्ट एग्जांपल इज मेक माई ट्रिप आप ले सकते हैं। तो कुछ लोग इसको भी रिवर्स चार्ज मानते हैं, मैं बिल्कुल नहीं मानता इसको रिवर्स चार्ज, क्योंकि रिवर्स चार्ज का डेफिनेशन स्पेसिफिकली केवल 9(3) और 9(4) की बात करता है। यहाँ तक तो क्लियर है। तो देयरफॉर जब भी रिवर्स चार्ज की बात हो तो सबसेक्शन 9, सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 9 एंड सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9 की हम बातें करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब एक इंट्रोडक्शन समझते हैं कि RCM का डेफिनेशन क्या कहता है। तो RCM का डेफिनेशन सबसेक्शन 98 ऑफ सेक्शन 2 इसमें दिया गया है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है। तो सिंपली आप देखेंगे, मैंने जो हाईलाइट भी किया इसमें, आप पाएंगे कि लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन द रिसिपिएंट है।
इंस्टीड ऑफ सप्लायर, यहाँ पे जो लाइबिलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसके ऊपर है? रिसीवर के ऊपर है, रिसिपिएंट के ऊपर है, कस्टमर के ऊपर है। तो यहाँ पे कस्टमर को टैक्स पे करना होता है, यही रिवर्स चार्ज की डेफिनेशन में दिया गया। अब ध्यान दें, यहाँ पे जो मैंने अभी चार्जिंग सेक्शन डिस्कस किया, सब सेक्शन 3 एंड सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9, कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन जो है आईजीएसटी एक्ट में जाते हैं, तो सब सेक्शन 4 एंड 5 ऑफ 3 एंड 4 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट है, सेम बातें करता है। वो केवल इंटरेस्टेड की बातें करता है, सीजीएसटी इंटरेस्टेड की बातें करता है। तो इसी डेफिनेशन की वजह से हम कहते हैं कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है वो क्या है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म केवल सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 ही है, जिसके केस में रिसीवर को टैक्स पे करना होता है, ना कि सप्लायर्स। ठीक है। सो इस केस में, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में आप देखेंगे जो टैक्स पे कौन करता है? यदि आप सेलर हैं, मैं बायर हूं, तो मैं यदि खरीद रहा हूं और वो नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज है, तो मुझे पे करना पड़ेगा। मैं टैक्स की पेमेंट आपके इनवॉइस पे आप चार्ज नहीं करते एज पर जो प्रोसीजर ऑफ द लॉ, और वो टैक्स मैं डायरेक्टली आपका इनवॉइस लेके प्रोसेस करता हूँ, उस पर जो टैक्स बनता है वो सेल्फ कैलकुलेट करके मैं गवर्नमेंट को जमा करा देता हूँ, और फिर टाइम टू टाइम जैसा होता है अंडर द लॉ, मैं उसका इनपुट टैक्स रेट भी अवेल कर सकता हूँ। यही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आप ये चार्ट देख के भी समझ सकते हैं कि एक सप्लायर है, आप यहाँ देख रहे होंगे, वो गुड्स सप्लाई करता है या सर्विस सप्लाई करता है, और जो रिसिपिएंट है वो पेमेंट तो डायरेक्टली सप्लायर को करता है, लेकिन इसमें जो टैक्स बनता है वो किसको देता है? डायरेक्टली गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराता है। आगे चलते हैं। चलिए, जो मैंने अभी डिस्कस किया चार्जिंग सेक्शन की, जो गुड्स हैं वो सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट या कॉरेस्पॉन्डिंग सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में गुड्स नोटिफाई है, सर्विसेज नोटिफाइड है, उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा। चलिए, आप सुन पा रहे होंगे। तो जैसा मैंने बताया है कि अब ये जो समरी है, आप जो स्लाइड अब देख पा रहे हैं ना, ये बेसिकली समरी है। एक मिनट, जो वेटिंग रूम में है उनको एडमिट कर लें। यस। सो यहाँ पे ये बेसिकली अब समरी आ गई आपके पास कि रिवर्स चार्ज किन किन केसेस में लगता है। तो सबसे पहले अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसका यही क्रक्स है कि जो नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज है अंडर सेक्शन 9(3) ऑफ सीजीएसटी एक्ट, अब मैं केवल 2 ही वर्ड यूज करूंगा, 9(3) एंड 9(4). तो आप समझ जाना कि ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सबसेक्शन 9(4) जो अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में है, और तीसरा है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अंडर भी नोटिफिकेशन इशू हुआ है, सॉरी, सबसेक्शन 5(3) ऑफ आईजीएसटी एक्ट इंपोर्ट के लिए नोटिफिकेशन आया है। ये इंपोर्ट आईजीएसटी एक्ट में इसलिए है क्योंकि इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन हो जाता है ये, तो देयरफॉर वो आईजीएसटी एक्ट इसको कवर करता है। तो इन केसेस में ही केवल अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, इसके अलावा आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे क्यों नहीं लगता? तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो है उस पे आईजीएसटी लगता है, बट वो अंडर कस्टम लॉ लगता है। आप देखेंगे तो सेक्शन 3 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर जब गुड्स इंपोर्ट होता है तो उस पे आईजीएसटी लेवी होता है और उसका क्रेडिट आप ले सकते हैं। सिमिलरली, लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में क्या होता है, वो कस्टम लॉ के अंदर वो गवर्न नहीं होता, देयरफॉर इसके लिए अलग नोटिफिकेशन आया सबसेक्शन अंडर सबसेक्शन 3 और 5 ऑफ आईजीएसटी। आई थिंक प्लीज म्यूट करें अपने। चलिए, तो देयरफॉर यही एक केसेज है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज। हालांकि अनरजिस्टर्ड पर्सन में भी नोटिफिकेशन इशू हुआ है, वो भी हम देखेंगे। और इसके अलावा भी कुछ केसेस कवर्ड हैं, वो हम स्पेशली नोटिफिकेशन के अंदर जो गवर्नमेंट ने मेंशन किया है कि किन किस केसेस में रिवर्स चार्ज लागू होगा, वो चीजें उसमें कवर्ड है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, अब नोटिफाइड गुड्स के बारे में पहले देख लेते हैं। तो जो गुड्स के केसेस में भी रिवर्स चार्ज देना होता है। अब ध्यान रहे, यहाँ पे 2 चीजें आप अलग कर लें, पहला एक गुड्स और दूसरा सर्विस रिवर्स चार्ज में।
नॉर्मली वर्ल्ड में दो ही चीजें होती है, या तो गुड्स होती है या सर्विस होती है, या डिजिटल गुड्स होता है या डिजिटल सर्विस। तो डिजिटल हो भी सकता है, लेकिन डिजिटल गुड्स भी होता है, जैसे ई बुक वगैरह है, ऑनलाइन गेमिंग है, मूवी है, इन सबको डिजिटल गुड्स भी कहते हैं। So there are two things on which normally business is done. First is goods and second is services. जीएसटी एक्ट में इन दोनों के अलावा किसी का जिक्र नहीं है। जो गुड्स नहीं है उसको सर्विस की कैटेगरी में डाला है, एक्सेप्ट आप कुछ ट्रांजेक्शन जैसे मनी ट्रांजेक्शन, स्टॉक वगैरह है, इनको छोड़ दे तो। सो देयरफॉर यहाँ पे गुड्स के केसेस में भी रिवर्स चार्ज लागू होता है जैसे फॉरवर्ड चार्ज लागू होता है, और सर्विस के केसेस में भी रिवर्स चार्ज होता है जैसे फॉरवर्ड चार्ज लागू होता है। अब जो गुड्स के केसेस में रिवर्स चार्ज लागू होता है वो 6-7 आइटम है, वो आपके सामने है। पहला मैं आपके फॉर द सेक ऑफ एवरीबॉडी मैं रीड कर दूंगा, आप याद देख लेना। इसमें सबसे पहले ये समझ लीजिए कि गुड्स के केस में कब रिवर्स चार्ज होगा। तो गुड्स के केस में रिवर्स चार्ज लागू होता है यदि आप एग्रीकल्चरिस्ट से, एग्रीकल्चरिस्ट जो होता है वो डिफाइंड है अंडर जीएसटी सीजीएसटी एक्ट, उससे यदि कोई गुड्स आप खरीदते हैं, बाई करते हैं, प्रोक्योर करते हैं, तो उस केसेस में क्या हो जाता है, यहाँ पे रिवर्स चार्ज लागू हो जाता है, लेकिन इन केस ऑफ स्पेसिफाइड नोटिफाइड गुड्स ओनली। तो नट सेल में मैं हूं, तो यदि आप कैश्यू नट्स सेल हो या ना हो, वो यदि एग्रीकल्चरिस्ट से खरीदते हैं और आप जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, ये भी एक कंडीशन है। आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं लेकिन एग्रीकल्चरिस्ट से आप बीड़ी रैपर खरीद रहे हैं, तेंदू लिप्स खरीद रहे हैं, कैश्यू नट्स खरीद रहे हैं, टोबैको लिप्स खरीद रहे हैं, तो इन केसेस में रिवर्स चार्ज में आपको देना पड़ेगा। जो आप ऑन दो बायर हैं लेकिन आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा इस केसेस में। इसके अलावा नीचे और भी कई केसेज हैं, आप देखेंगे ये पर्टिकुलर एचएसएन आपको फॉलो करना होगा। ये आप सबको तो पता होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के केस में एचएसएन के थ्रू ही रेट क्या अप्लाई होगा ये डिसाइड होता है। तो जो रेट वाला नोटिफिकेशन है वो एचएसएन को ही रेफर करता है, उसके बेस पे ही उसकी टैक्सेबिलिटी रेट ऑफ टैक्स डिफाइन होता है। तो यहाँ पे इन एचएसएन कोड्स को ही आपको देखना पड़ेगा, इन एचएसएन कोड्स के केसेस में ही केवल रिवर्स चार्ज में टैक्स लगता है। अनिल जी आप देख लीजिएगा, कोई वेटिंग रूम में तो नहीं है? Yes, sir. I have seen, sir. तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये सारे प्रोडक्ट्स आप देख लेंगे। पर्टिकुलर एचएसएन कोड्स में रेफर करूंगा, इसी में केवल रिवर्स चार्ज लागू होता है और एग्रीकल्चरिस्ट से खरीदते हैं। लेकिन किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से यदि आप पेपर मिंट है या कोई अदर स्पीयर मिंट ऑयल है, मतलब यहाँ पे कहा गया है कि एसेंशियल ऑयल्स अदर देन दोज ऑफ साइट्रस फ्रूट नेमली, ये नीचे वाले को छोड़ के बाकी एसेंशियल ऑयल्स के केसेस में जो इन पर्टिकुलर एचएसएन कोड्स में 3301 केसेस में फॉलो हो रहे हैं, उस पर आरसी में अप्लाई होता है। फिर जो है सिल्क यार्न यदि आप खरीदते हैं, जो कि मैन्युफैक्चर करता है, जो पर्सन मैन्युफैक्चरर है सिल्क यार्न का, उससे आप यदि बाई करते हैं और आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा। रॉ कॉटन आप यदि बाई कर रहे हैं तो उस केसेज में, कॉटन के केस में भी लेकिन कॉटन आप किससे खरीदेंगे? एग्रीकल्चरिस्ट से। तो एग्रीकल्चरिस्ट से यदि कॉटन आप खरीद रहे हैं तो उस केस में भी रिवर्स चार्ज में आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? कैश्यू नट्स, बीड़ी रैपर लीव्स, टोबैको लीव्स, एसेंशियल ऑयल्स जो है इन सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस, सिल्क यार्न, रॉ कॉटन, ये सारे एग्री प्रोडक्ट्स हैं। तो इन केसेस में आप यदि बाई कर रहे हैं तो आपको रिवर्स चार्ज में देना पड़ेगा। साथ में आपने देखा होगा कई स्टेट्स में लॉटरी भी चलता है, लॉटरी भी सेल होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट सेल करती है और लोग खरीदते हैं और उसको लॉटरी खेलते हैं, तो उस केसेस में भी रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है और रिवर्स चार्ज पे उसमें टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा यदि यूज्ड व्हीकल्स या गवर्नमेंट जो गुड्स सीज करती है, डिटेन करती है, बाद में उसका ऑक्शन करती है, आपने देखा होगा, तो वो जो यूज्ड व्हीकल्स हैं या कन्फिस्केटेड गुड्स हैं उन सबको, या सीज्ड गुड्स हैं, उन सबको यदि बेचना होता है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको जब बेचती है तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो यदि बाई करता है तो उसको उस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स देना होता है। तो आप ध्यान रखें यहाँ पे, यदि गवर्नमेंट कोई भी सीज्ड गुड्स बेचती है और आप उसको खरीद रहे हैं तो आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा यदि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सबको। या वेस्ट एंड स्क्रैप भी यदि गवर्नमेंट बेचती है तो वेस्ट एंड स्क्रैप के गुड्स में केस में भी आपको पे करना पड़ेगा आरसी।
प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स जो होता है नॉर्मली आरबीआई बैंक को इशू करती है। मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, ये बैंकर्स को ज्यादा पता होगा इसके केस में। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट यदि वो गवर्नमेंट इशू कर रही है तो जिसके पास है उसको यदि कोई खरीद रहा है, जो रजिस्टर्ड पर्सन खरीद रहा है, और उसको बेचने वाले कौन है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन हो सकता है जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट बेच रहा है, और आप खरीद रहे हैं, तो आपको रिवर्स चार्ज में उस पर टैक्स देना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। तो ये 7 केसेस बेसिकली लिस्टेड हैं अंडर नोटिफिकेशन नंबर 4 ऑफ 2017, जिसपे आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ता है। और ये गुड्स वाले केसेस हैं, ध्यान रखें, ये ओनली गुड्स वाले केसेस हैं जिसमें रिवर्स चार्ज में टैक्स देना होता है। सर्विस वाले केसेस हम आने वाले नेक्स्ट स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे, देखेंगे। इस यहाँ तक किसी को कोई डाउट है अनिल जी, कुछ पूछना है? नो सर। पूछना? चलिए, तो हमने गुड्स देख लिया, चार्जेबिलिटी कहाँ से आई, ये सारी चीजें हमने देख लिया, ओरिजिन क्या है, कैसे आया, वो देख लिया। अब आते हैं सर्विस टैक्स के केसेज में, सर्विस टैक्स कह रहा हूँ, सॉरी, सर्विसेज के केस में। तो जो सर्विसेज अब नोटिफाइड है वो किसके अंडर नोटिफिकेशन नंबर 13 ऑफ 2017 है, जिसमें उन सर्विसेज की लिस्ट दी गई है जिसपे रिवर्स चार्ज में टैक्स देना है, जो कस्टमर है उन सर्विसेज का उसको देना है। तो उन सर्विसेज की लिस्ट अब एक एक करके हम चेक करेंगे, हम पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहला जो आता है वो जीटीए सर्विस आता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विसेज आता है। अब ये जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विसेज है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन भी है और नहीं भी है। जो समझ गए उनके लिए नहीं है, और जो जिन्होंने नहीं समझा उसके लिए बड़ा कंफ्यूजन है। जीटीए के केसेस में क्या होता है कि जीटीए की सर्विसेज जो है, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, जो कंसाइनमेंट नोट करता है, जो मतलब आप पढ़ेंगे उसके बारे में आपको पता होगा कि वो कंसाइनमेंट नोट इशू करता है अंडर मोटर व्हीकल्स एक्ट। और वो नॉर्मली क्या है कि जो कस्टमर जो है, मतलब जिनको सप्लाई ट्रांसपोर्ट करना है, उस वो फैसिलिटी अरेंज कराते हैं, तो इसलिए इसको एजेंसी कहा गया है। और ये रजिस्टर्ड होते हैं स्पेशली अंडर एज अ जीटीए, एज अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो उनकी यदि सर्विसेज कोई अवेल कर रहा है, और ये जो जीटीए है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसके पास ऑप्शन होता है कि या तो वो रिवर्स चार्ज में टैक्स कराए, या वो फॉरवर्ड चार्ज में भी टैक्स पे कर सकता है। उसके लिए सब्जेक्ट टू कंडीशन है जीटीए के लिए। फॉरवर्ड टैक्स चार्ज में टैक्स पे करता है तो उसके केस में 12% उसको टैक्स पे करना होता है, और वहां पे उसको आईटीसी मिल जाती है। यदि वो कोई खर्च कर रहा है तो उसको आईटीसी मिलती है, लेकिन उसको जो टैक्स जो लेवी कर सकता है, रेट जो एप्लीकेबल होगा वो 12% एप्लीकेबल होता है। लेकिन अंडर रिवर्स चार्ज वो यदि चार्ज करता है तो उसके केस में उसको कोई टैक्स चार्ज करने की जरूरत नहीं है। उस केसेस में टैक्स कौन देगा, जो रिसीवर है वो रिसीवर ही टैक्स देगा। तो ये केसेज है, तो इसलिए कहा गया है कि यदि जीटीए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और वो सर्विस वो यानी वो जो ट्रांसपोर्ट चार्जेज हैं, जो फ्रेट है, वो फ्रेट पे करने की जिम्मेवारी किसकी है, किसी फैक्ट्री की है, या सोसाइटी की है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की, या जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है, या कोई भी कंपनी है, या पार्टनरशिप फॉर्म है, या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। इन सबको यदि वो सर्विस प्रोवाइड करता है, और ये लोग यदि वो फ्रेट पे करते हैं, बेसिकली आप क्रक्स में आएंगे तो यही है, सर्विस टैक्स के रिजिम में भी यही था। तो ये यदि जो फ्रेट पे करते हैं ये, तो उस केस में जो जीएसटी अंडर आरसीएम डिस्चार्ज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं लोगों के ऊपर होती है। तो आप देखें इस टेबल में रिसिपिएंट ऑफ सर्विस वाले कॉलम में जो मैंने हाईलाइट किया है, ये वो लोग हैं जिनको आरसीएम में पेमेंट करना है यहाँ। सो मुझे लगता है यहाँ तक ये क्लियर हो गया। चलिए, हालांकि एक्सेप्शंस कई हैं इसमें, आप देखेंगे यदि वो गवर्नमेंट एजेंसी को, डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कर रहा है, जो केवल टीडीएस वगैरह डिडक्ट करते हैं, तो उनके लिए अप्लाई नहीं होता है, वो सब ठीक है। वो आप डिपार्टमेंट्स का आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, सेक्शन 51 सेक्शन 52 पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो उस वहां भी एक्सेप्शन है, बट जो पे करना है बेसिकली हमें जो चार्जेबिलिटी देखनी है, तो हमारे हिसाब से जीटीए की सर्विस यदि कोई भी ले रहा है तो उसके लिए एप्लीकेबल है। फैक्ट्री वगैरह ही लेता है, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जीएसटी में जो रजिस्टर्ड है वो पर्सन, या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट
जो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, पार्टनरशिप फॉर्म, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये वही सारे लोग हैं जो जीटीए की सर्विसेज लेते हैं। तो इस केसेस में दे आर लाइबल टू डिस्चार्ज आरसीएम लाइबिलिटी ऑन जीटीए सर्विसेज। नंबर 2 जो नोटिफाइड है वो है एडवोकेट्स या सीनियर एडवोकेट्स भी कवर्ड हो जाते हैं, और यदि फॉर्म एडवोकेट्स की फॉर्म है वो भी कवर हो जाती है। वो यदि कोई लीगल कंसल्टेंसी देते हैं, लीगल सर्विसेज डिस्चार्ज करते हैं, किसको, किसी भी बिजनेस एंटिटी को। अब देखने वाली बात है कि बिजनेस एंटिटी तो वर्ड एज अ वर्ड डिफाइन नहीं है, लेकिन कोई भी यदि डिस्चार्ज करता है तो दे आर रजिस्टर्ड एंड दे हैव टू डिस्चार्ज आरसीएम लायबिलिटी ऑन दिस लीगल सर्विसेज। देयरफॉर आपने देखा होगा कि जो भी एडवोकेट की का बिल आता है आपके पास, उस पे वो टैक्स चार्ज नहीं करते, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टेकिंग रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ। ये भी है, वो मैं आगे वाले स्लाइड्स में बताऊंगा रजिस्ट्रेशन के रिक्वायरमेंट्स में। बट यहाँ पे आप मान के चले एडवोकेट की सर्विस आती है, लीगल सर्विस का जहाँ भी बिल आता है, लेकिन लीगल सर्विस का बिल यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट का आता है तो वो उस पर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट यदि प्रोवाइड कर रहा है तो ही हैज टू चार्ज जीएसटी ऑन हिज इनवॉइसेस। लेकिन वही यदि एडवोकेट की का इनवॉइस आता है तो उस पर आरसीएम एप्लीकेबल है, और वो आरसीएम टैक्स रिसीवर को पे करना पड़ेगा। सिमिलरली आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वगैरह आपको पता है, ये किसी बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस, तो उस पर उनको देना पड़ेगा। फिर स्पॉन्सरशिप सर्विस है, वो चाहे कोई भी सप्लायर हो और वो स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फॉर्म को। ये मैंने केसेस हाईलाइट किया है आपकी ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ये चीजें आप ध्यान से देखिएगा। तो इस केसेस में रिवर्स चार्ज लायबिलिटी एप्लीकेबल है। फिर यदि कोई सर्विस है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है किसी बिजनेस एंटिटी को, अब आप कहेंगे कि वो कौन सी सर्विस है, तो कोई भी सर्विस हो सकती है, यहाँ पे तो यही वर्ड डिफाइंड है, नोटिफाइड है, एक्सेप्ट, लेकिन उन्होंने कहा है कि यदि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो इसमें कवर नहीं है, एंट्री नंबर 5 में कवर नहीं है। लेकिन कोई भी सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी यदि या लोकल अथॉरिटी, वो भी गवर्नमेंट का पार्टी है, यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ें तो आर्टिकल 11 है टू 13 में ये कहा गया है कि लोकल अथॉरिटी भी गवर्नमेंट है। तो वो यदि प्रोवाइड कर रहे हैं कोई सर्विस किसी भी बिजनेस एंटिटी को तो वो कवर्ड है, और उस पर रिवर्स चार्ज लायबिलिटी एप्लीकेबल होता है, यानी बिजनेस एंटिटी को टैक्स देना पड़ेगा। फिर आता है यदि जैसे ऊपर वाले एंट्री नंबर 5 में इन्होंने रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को अलग एक्सक्लूड किया था, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वगैरह ये सारी सर्विसेज भी, तो नीचे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को इन्होंने कवर कर लिया है 5A में। ये ध्यान दीजिएगा 5A में, फिर कोई भी सर्विस यदि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, किसको, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को अंडर सर्विस, तो उस केसेस में वो जो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है ही हैज टू डिस्चार्ज टैक्स अंडर आरसीएम। और वो कौन सी सर्विस है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब आपने कोई भी सरकारी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसको आपने रेंट पे लिया है, रेंट पे, किराए पे लिया है, तो उस केस में उसका जो आप रेंट पे करेंगे उस पे आपको आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। इसका मीनिंग ये हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, आप सबसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज इसे नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे एंट्री नंबर 5 में कवर हो जाता है कि कोई आप सरकारी फीस वगैरह पे कर रहे हैं किसी कारणवश, तो उसमें भी आपको रिवर्स चार्ज में पे करना होता है, जो कि नॉर्मली कोई करता नहीं है। तो वो 5 एंट्री नंबर 5 में वो कवर्ड हो जाता है, क्योंकि वहां पे सर्विसेज सप्लाइड बाई गवर्नमेंट कहा गया है, और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को 5A में कवर कर लिया है। और कोई भी बिजनेस एंटिटी, हम एज ए इंडिविजुअल यदि वो कोई सर्विस लेते हैं गवर्नमेंट का तो उस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स नहीं देना है, लेकिन कोई बिजनेस एंटिटी लेती है तो उसको टैक्स देना है रिवर्स चार्ज में। 5B जो है ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए कहा गया है, कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो FSI ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स जो होता है FSI फॉर कोई भी प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन के केसेस में ये यूज होता है। ये उस केसेस में प्रोमोटर को यदि TDI वगैरह ट्रांसफर होता है, FSI TDI वगैरह, तो उस केस में प्रोमोटर को, यानी जो जो बिल्डर है, प्रोमोटर मीन्स वो जो बिल्डर हो गया है, इनफैक्ट वो बिल्डर को आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा।
5C में भी सिमिलरली लॉन्ग लैंड का लॉन्ग टर्म लीज दे रहे हैं 30 ईयर्स से ऊपर का, और उसके लिए कुछ आपने अपफ्रंट फी लिया है, मतलब आप लैंडलॉर्ड है और आपने लॉन्ग टर्म लीज दे दिया किसी प्रमोटर को, किसी बिल्डर को कि कंस्ट्रक्शन कर लो, कोई भी प्रोजेक्ट बना लो, तो उस केस में आपने कुछ ना कुछ डाउन पेमेंट लिया होगा, अपफ्रंट फी ली होगी, डेवलपमेंट चार्जेस लिए होंगे। तो उन केसेस में जो बिल्डर है उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये दो केसेस कवर हो गए, ट्रांसफर ऑफ टीडीआर जिसको बोलते हैं, टीडीआर या एफएसआई का ट्रांसफर हो गए प्रमोटर को यदि कोई करता है तो इस पर प्रमोटर को टैक्स देना है, यानी बिल्डर को टैक्स देना है। प्लस लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड यदि है तो उस पर भी बिल्डर को आरसीएम में टैक्स देना है। ये याद रखिएगा, ये बिल्डर के केसेस में आपके यदि बिल्डर क्लाइंट्स हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनको इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी को ध्यान देना पड़ेगा कि जहां भी टीडीआर एफएसआई वगैरह इंक्लूड है या लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड है, उस पे उनको ये सर्विस है, तो इन सर्विसेज पे उनको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है। ये क्लियर हो गया। इसके अलावा जो कई 2-3 केसेस और है बिल्डर के लिए, वो मैं आगे वाले स्लाइड्स में बताऊंगा आपको। तो ये फिलहाल 2 केसेस है बिल्डर के लिए। नेक्स्ट है, हर कंपनी में डायरेक्टर होता है। तो डायरेक्टर जो एक तरह से कहा गया है कि यदि वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है कंपनी को, तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होता है और कंपनी को आरसीएम टैक्स पे करना है, जो भी डायरेक्टर की फी पे करती है। नटशेल में कहें, प्रैक्टिकली कहें, तो आप यदि कंपनी में काम करते हैं, कंपनी का जो भी डायरेक्टर को आप फी, डायरेक्टर की फी रेज होती है, उस फी पे आपको आरसीएम में टैक्स देना है, चाहे सीटिंग फी हो या कोई और अदर, उसमें आपको आरसीएम अप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली इंश्योरेंस एजेंट के केस में भी अप्लाई होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी को इसके केस में पे करना होता है रिवर्स चार्ज में, जो भी इंश्योरेंस एजेंट की फी वगैरह पे करती है इंश्योरेंस कंपनी। कोई रिकवरी एजेंट की फी पे करती है कोई भी बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी, तो वो बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी रिकवरी एजेंट की जो भी फी पे कर रही है उस पर रिवर्स चार्ज अप्लाई करेगी। ये सारे केसेस आप समझ गए। नेक्स्ट जो रिवर्स चार्ज में कवर है, वो म्यूजिक कंपोजर जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, या फोटोग्राफर या आर्टिस्ट या ऑथर, जो राइटर है, बुक का राइटर है, वो यदि कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब ये हो गया कि उसने कॉपीराइट ट्रांसफर किया है। यदि ऑथर है तो कॉपीराइट ट्रांसफर करेगा, म्यूजिक कंपोजर या फोटोग्राफर है तो वो भी क्या करेगा, कॉपीराइट देता है कंपनी को, म्यूजिक कंपनी वगैरह को, प्रोड्यूसर्स को, पब्लिशर्स को। तो वो जो प्रोड्यूसर कंपनी है या प्रोड्यूसर्स हैं या म्यूजिक कंपनी है या पब्लिशर हैं, जैसे टैक्समैन, भारत लॉ हाउस वगैरह, उसके जो राइटर्स हैं उसके पे आपके उनको टैक्स पे करना होता है। तो देयरफॉर वो उस पे रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करते हैं। मेरे केस में एग्जांपल लेंगे तो मैंने जो बुक लिखी उसके केस में मैं टैक्स नहीं पे करूंगा। मेरा जो पब्लिशर है, भारत लॉ हाउस मेरा पब्लिशर है, तो भारत लॉ हाउस को उस पे आरसीएम जो भी मुझे पेमेंट आएगी रॉयल्टी के फॉर्म में, उस पे वो आरसीएम में टैक्स पे करेंगे। ये केसेस कवर है। नेक्स्ट आ गया मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमेटी, जो आरबीआई ने फॉर्म किया है, उस केसेस में भी टैक्स देना पड़ेगा। फिर डीएसए एजेंट्स के केस में भी बैंकिंग कंपनी जो है, जो भी पेमेंट करती है डीएसएच को, उस पे आरसीएम में टैक्स पे करना है, बैंकिंग या एनबीएफसी को। बिजनेस फैसिलिटेटर के केस में भी बैंकिंग कंपनी जो है, वो जो भी पेमेंट करती है बिजनेस फैसिलिटेटर को, उसके केस में वो आरसीएम में टैक्स देगी। ये बैंकिंग कंपनीज के लिए। तो हमने यहाँ देख लिया नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए, बिल्डर्स के लिए, बैंकिंग कंपनी के लिए, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो होते हैं उनको भी पे करना होता है यदि एजेंट को कोई फी पे करते हैं। नेक्स्ट सीरियल नंबर 14 में है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। ये लगभग हर केस में अप्लाई होता है कि सिक्योरिटी जो सर्विस है वो जो सिक्योरिटी सर्विस है, वो सिक्योरिटी सर्विस पे रिवर्स चार्ज में अब टैक्स पे करना होता है। सो वो सिक्योरिटी सर्विस पे जितने रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में, उन सबने यदि सिक्योरिटी सर्विस ली है, जो सिक्योरिटी एजेंसी जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, हमारे ऑफिस, फैक्ट्री, इधर उधर, उन सब के केसेस में उनको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ता है यदि वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है। यानी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो सिक्योरिटी एजेंसी है, वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो उस केसेस में रिवर्स चार्ज में जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जो रिसिपिएंट है, उसको आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। और यदि वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो नॉर्मली उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है,
और वो फिर वो जीएसटी पे इनवॉइस पे ही जीएसटी चार्ज करके और आपको इनवॉइस रेज करता है, इसलिए आपको उस केसेस में आरसीएम पे टैक्स नहीं देना। सिमिलरली रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स के केस में भी जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है, वो कोई भी सप्लायर हो सकता है जो कि इनवॉइस इशू नहीं करता है। तो उस केस में जो बॉडी कॉर्पोरेट है, जो कंपनी है, उसको जो सर्विस प्रोवाइड करती है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स, तो उस केस में भी रिवर्स चार्ज में किसी भी कंपनी को, बॉडी कॉर्पोरेट को टैक्स पे करना। बाकी जो लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज है, ये तो लेंडर्स बड़ों से स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है, उनको भी बॉरोवर्स जो है सिक्योरिटीज के, उनको भी आरसीए में टैक्स पे करना है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रेगुलर केसेस में आते हैं वो बिल्डर्स जो हैं, जैसे रियल एस्टेट कंपनी है, उसके लिए वो 2 पॉइंट कवर हो गया। फिर जो रजिस्टर्ड पर्सन है, ये सिक्योरिटी सर्विस कवर हो गया, और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, ये केसेस कवर हो गए। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बैंकिंग कंपनी के लिए 2-3 केसेस हो गए, और म्यूजिक का कंपोजर ऑथर, ये तो आप समझ गए। अभी चलते हैं, ये अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ये सारे सर्विसेज हैं, देयर आर 16 लाइन आइटम्स जिस पे रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना होता है अंडर नोटिफिकेशन नंबर 30। ठीक है, अब आते हैं सर, अब ये 2 केसेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जब पहले आपको याद हो स्लाइड मैंने दिखाया था, मैंने कहा था कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केसेस में, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केसेस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा। वो यहाँ पे नोटिफाई किया गया है, यहाँ पे वाइड नोटिफिकेशन नंबर 10 ऑफ 2017 की कोई भी सर्विस, यदि कोई पर्सन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में बैठा है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी कौन सा हो गया? आउटसाइड इंडिया। इंडिया में तो हर जगह जीएसटी अप्लाई होता है, सो इंडिया के अंदर तो पूरा एरिया ही जो है वो टैक्सेबल है, सो इसलिए इंडिया में जो बैठा है वो टैक्सेबल टेरिटरी है। तो इसके बाहर यदि कोई बैठा है और वहां से कोई सर्विस सप्लाई कर रहा है, चाहे कोई भी सर्विस हो सकती है, कंसल्टेंसी सर्विस हो सकती है, बाकी और भी जो सर्विसेज हैं, जैसे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पढ़ेंगे तो देखेंगे, तो वो सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसमें रिवर्स चार्ज में जो इंपोर्टर ऑफ सर्विस है ना सर, जो इंडिया में बैठा हुआ है, उस इंपोर्टर ऑफ सर्विस को उस पर आरसीएम में टैक्स देना होता है। ये आप कैसे समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने चेक किया है कि बहुत सारी कंपनी में लोग सर्विस इंपोर्ट तो कर लेते हैं लेकिन उस पर आरसीएम में टैक्स पे नहीं करते, जो कि एक नॉन कंप्लायंस है। सो कोई भी सर्विस यदि आप इंपोर्ट कर रहे हैं और वो सर्विस कैटेगरी में आ रहा है, तो आपको उस पर टैक्स पे करना है रिवर्स चार्ज में, ये आप मान के चलिए। ये समझ गए। दूसरा, जब भी हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं, गुड्स पे तो आरसीएम में टैक्स लगता नहीं है, वो तो अंडर कस्टम लॉ लगता है, आईजीएसटी एक्ट अंडर सेक्शन 12 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट। अब जो गुड्स इंपोर्ट करते हैं उसके केस में जो वेसल है, वेसल यानी ओशन फ्रेट जो देते हैं हम, जो फ्रेट हम पे करते हैं, उस फ्रेट पे भी रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है, क्योंकि जो फ्रेट ऑनर है, जो वेसल का जो ऑनर है वो फॉरेनर है, तो इसलिए वो हमें सर्विस, वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में बैठा हुआ है, वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो देयरफॉर जो इंपोर्टर है, उस इंपोर्टर को इस ओशन फ्रेट के केस में रिवर्स चार्ज में टैक्स देना है। हालांकि ये ऑलरेडी चैलेंज है, हाई कोर्ट में रिट फाइल किया और उसके केस में इस पे होल्ड है, अभी तक डिसीजन आया नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात हो रही है। लेकिन आप मान के चलें कि ओशन फ्रेट पे आरसीएम में टैक्स देना होता है, और कोई भी सर्विस इंपोर्ट करते हैं तो आपको उस पर टैक्स देना होता है। अब चलते हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा वो अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है, जो सर्विसेज टैक्सेबल है उनके बारे में पढ़ा हमने। अब चलते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में, कि अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में कौन कौन सी सर्विसेज है, वो क्या है जिसपे अनरजिस्टर्ड आरसीएम अप्लाई होता है। तो सबसे पहला अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस, जैसे हमने बताया सेक्शन 4 अप्लाई होता है, और इसके केस में जो नोटिफाइड है वो नोटिफाइड है नोटिफाइड। जैसे मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि जो 5000 तक का एग्जाम्पशन था शुरू में, जब जीएसटी एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था, तो 5000 तक का एग्जाम्पशन था, लेकिन उसके ऊपर यदि वैल्यू बढ़ती थी आपकी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से यदि आप खरीदते थे, तो उसके केस में आपको आरसीएम में टैक्स पे करना होता था। उसको फिर 5000 की लिमिट को बढ़ा करके अनलिमिटेड कर दिया गया, फिर उसको इस एग्जाम्पशन को ही रिसीव कर दिया गया,
और 2018 में 9 सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 को अमेंड किया गया। सो उसके केस में अब जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो केवल अभी जो नोटिफिकेशन आया है वो रियल एस्टेट सेक्टर में ही आया है, और रियल एस्टेट सेक्टर में केवल 3 केसेज हैं जहां पे ये आप देख पा रहे हैं, 3 केसेज में ही आरसीएम में टैक्स पे करना होता है बिल्डर को या प्रोमोटर को, बिल्डर कह लें आप या प्रोमोटर कह लें। पहला केस कि जो भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई होती है, एक्चुअली प्रोमोटर बिल्डर को लोअर रेट लेवी करने के लिए उसमें कंडीशंस हैं जिसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है कि 75% 90%, जो भी शायद 90% ही है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, वो 90% केसेस प्रोक्योर करना होता है आपको डोमेस्टिक सप्लायर से। तो वो जो केसेस हैं वहां पे यदि कोई शॉर्टफॉल हो जाता है, वो नोटिफिकेशन नंबर 11 ऑफ 2017 में मेंशन है, स्पेसिफिक आप देखेंगे तो सब चीजें मेंशन है, वो किसी जब हमें अलग दूसरी बार मौका मिलेगा तो हम देखेंगे। तो उस केसेस में यहाँ पे आरसीएम में जो शॉर्टफॉल है, वो शॉर्टफॉल पे यदि वो प्रोक्योर करना होता है उसको, तो उस केसेस में आरसीएम में बिल्डर या प्रोमोटर टैक्स देगा। तो ये गुड्स और सर्विसेज हो गए। दूसरा हो गया सीमेंट। सीमेंट भी जब भी वो प्रोक्योर करेगा बिल्डर या प्रोमोटर, तो उसके केस में उसको आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। और तीसरा है कैपिटल गुड्स के केस में, यदि कंस्ट्रक्शन के लिए कैपिटल गुड्स प्रोक्योर किया है उसने और उसमें जो कंडीशंस है नोटिफिकेशन नंबर 11 ऑफ 2017 की, उस कंडीशन के केसेस में उनको पे करना पड़ेगा आरसीएम में। तो ये 3 केसेस केवल आरसीएम के रियल एस्टेट सेक्टर में नोटिफाइड है अंडर सेक्शन 9(4) यानी सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो जो हम अनरजिस्टर्ड की बातें कर रहे थे अभी तक, उसमें केवल 3 ही केसेस हैं जहां पे रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है रिसीवर को, रिसिपिएंट को, वो है बिल्डर या प्रोमोटर को पे करना है। ये अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9 और सबसेक्शन 3 के अंदर जो 2 केसेस हमने पढ़े थे, टीडीआई, एफएसआई, वो जो ट्रांसफर हो रहा था डेवलपमेंट राइट्स वगैरह, वो सारे अभी जो हमने पढ़े, जो आपको स्लाइड दिखाता हूँ, ये लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड, टीडीआई, एफएसआई, ये केसेस में भी रिवर्स चार्ज, लेकिन ये अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में नोटिफाइड है। लेकिन ये जो नीचे अभी हम जो देख रहे हैं, ये 3 केसेस बिल्डर के लिए सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज अंडर कंडीशंस ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 11 एंड ऑफ 2017, सीमेंट या कैपिटल गुड्स जो भी शॉर्टफॉल में वो प्रोक्योर कर रहा है, इस केसेस में भी रिवर्स चार्ज में प्रोमोटर या बिल्डर को देना। तो ये दोनों में डिफरेंस है। सो आप मान के चलें कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से जो भी अभी आप प्रोक्योर कर रहे हैं, वो किसी भी केस में आपको जीएसटी आरसीएम में पे नहीं करना, एक्सेप्ट वो बिल्डर या प्रोमोटर इन केस ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर। वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से जो भी आप प्रोक्योर कर रहे हैं, वो सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9 में नोटिफाइड है। केवल रियल एस्टेट सेक्टर में 3 केसेस में आरसीएम में बिल्डर या प्रोमोटर को टैक्स पे करना है, इसके अलावा और कहीं भी टैक्स पे नहीं करना। अब मैं रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट चलता हूँ, काफी टाइम हो गया, थोड़ा हमारे टाइम की कमी है। चलिए, रजिस्ट्रेशन में जैसे मैंने पहले बताया है कि जब भी रिवर्स चार्ज आप पे एप्लीकेबल होता है तो आपको कंपलसरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होता है, मैंडेटरी है। वहां कोई थ्रेशोल्ड लिमिट कुछ काम नहीं करता। आप पे जीएसटी एप्लीकेबल है तो सेक्शन 24 आपको रेफर करना पड़ेगा, और उन केस में आपको जीएसटी के अंदर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज ए आरसीएम, क्या कहते हैं, आरसीएम प्रोवाइड लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, आपको वो देखना पड़ेगा। तो ये मान के चलिए यहाँ पे कोई थ्रेशोल्ड लिमिट अप्लाई नहीं होता है। अब टाइम ऑफ सप्लाई जरा ब्रीफली 1-2 मिनट का काम है। अब जो टैक्स पे कर रहे हैं आप, तो टैक्स पे करेंगे तो कब करेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई बेसिकली यही बताता है कि टैक्स पे करना कब होता है। तो जो टैक्स पे करना होता है, अब जैसे मैंने पहले बताया कि एक गुड्स की सप्लाई होती है और एक सर्विस की सप्लाई होती है। तो गुड्स के केस में आपको जो टैक्स पे करना है, वो 3 चीजें हैं, 3 कंडीशन है। इनमें सबसे पहले जो इवेंट हो जाता है, 3 इवेंट में सबसे पहले जो इवेंट होगा उस केस में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा आरसीएम में। पहला इवेंट है डेट ऑफ पेमेंट, यानी पेमेंट आपको कब मिली है वो डेट देना है। दूसरा, आपने गुड्स जो रिसीव किया है वो कब रिसीव किया है। तीसरा, जो आपका इनवॉइस का जो डेट है सप्लायर का, उससे 30 डेज ऐड कर लें। तो इन तीनों में सबसे पहला जो इवेंट पड़ेगा वो आपका
डेट है जब आपको आरसीएम में टैक्स पे करना था गवर्नमेंट को, वो महीना आपको कवर करना पड़ेगा, उस महीने में टैक्स पे करनी। सर्विस के केस में वेरी सिंपल, जब पेमेंट आई है तब, या जो इनवॉइस की डेट है उसका 60 डेज आप काउंट कर लें, प्लस कर लें, और इन दोनों के केसेस में जो अर्लियर है उसी पे आपको टैक्स पे करना है। ये सेक्शन 12 गुड्स के केस में सेक्शन 12 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल है, एंड सर्विसेज के केस में सेक्शन 13 है। बेसिकली ये बाई मिस्टेक यहाँ 12 रह गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई क्लियर हो गया आरसीएम के केस में। आरसीएम के केस में हमने रजिस्ट्रेशन भी क्लियर कर लिया है कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। अब रिवर्स चार्ज इनवॉइसिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि आरसीएम के केस में कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है जो आरसीएम सर्विस रिसीव कर रहा है, जिसपे उसको आरसीएम में टैक्स पे करना है, तो उस केस में जो सॉरी वो दूसरा केस बता रहा था यहाँ पे आप यदि आरसीएम वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और आप रजिस्टर्ड पर्सन है जिसपे आरसीएम में टैक्स लगता है, तो आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना है, और उस टैक्स इनवॉइस पे स्पेशली आपको एक वर्ड मेंशन करना होता है कि वेदर टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस बाय रिसिपिएंट और नॉट। ये स्पेशली मेंशन करना होता है टैक्स इनवॉइस पे, तो आप मेंशन करेंगे अंडर सेक्शन 31 ऑफ सीजीएसटी है। तो टैक्स इनवॉइस रजिस्टर्ड पर्सन, जैसे मैंने बताया था शुरू में, कि जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन को डील करता है, और अनरजिस्टर्ड भी कुछ कवर्ड है उसमें, वो हमने अभी देख लिया एग्जांपल में। तो वो रजिस्टर्ड पर्सन यदि है तो वो टैक्स इनवॉइस इशू करने के लिए ही इज लायबल, तो उस टैक्स इनवॉइस पे ये वर्ड मेंशन करना जरूरी है उनके लिए, आप सब ध्यान दें इन केसेस में। मैंडेटरी उनको टैक्स इनवॉइस पे यदि इशू कर रहे हैं तो उसको ये वर्ड जो है लिखना ही पड़ेगा, ये पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी, वेदर टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस बाय द रिसिपिएंट। एग्जैक्ट वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, बट मीनिंग ये जाना चाहिए कि जो रिसिपिएंट है क्या उसको इस पे टैक्स देना है, यस और नो, ये क्लियर कट कम्युनिकेट होना चाहिए, तो वो कम्युनिकेशन आप देंगे। यदि अनरजिस्टर्ड है, यदि सप्लायर जो है अनरजिस्टर्ड है, तो जीएसटी एक्ट अप्लाई नहीं होता, तो उसको कोई डॉक्यूमेंट अंडर जीएसटी लॉ इशू करने की जरूरत नहीं है, वो जो भी इशू करता है दैट इज विल बी सफिशिएंट यदि अनरजिस्टर्ड सप्लायर है। ये केसेस ये क्लियर हो गए, इनवॉइसिंग क्लियर हो गया जी। अब आते हैं ये सप्लायर के लिए, ध्यान दीजिएगा, यदि आरसीएम में सप्लायर ऑफ गुड्स या सर्विस है, ये उसके लिए है। इसके अलावा जीएसटी लॉ ने जो रिसिपिएंट है, सिंस रिसिपिएंट पे लायबिलिटी पे करने की जिम्मेवारी है, ध्यान दीजिएगा, रिसीवर जो है लायबिलिटी पे करने की जिम्मेवारी है, इसलिए लॉ ने उसको कहा है कि आप कुछ डॉक्यूमेंट भी इशू करेंगे। वो क्या डॉक्यूमेंट इशू करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो वो सेल्फ इनवॉइस इशू करेंगे। किस केस में इशू करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। यदि आपके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है, यानी आप कस्टमर हैं, रिसिपिएंट है, रिसीवर ऑफ गुड्स या सर्विस है, लेकिन आपको आरसीएम में टैक्स देना है, चाहे वो 9(3) के अंदर आप आरसीएम लायबल हो या 9(4) के अंदर लायबल हो, लेकिन आपको आरसीएम में टैक्स पे करना है, और आपने जो आपका जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फोकस करिएगा, आपका जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में आपको सेल्फ इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी है। अब वो सेल्फ इनवॉइस कब इशू करेंगे? ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे आप इस यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कोई भी कंपनी या कोई भी सर्विस रिसिपिएंट जो कि रिवर्स चार्ज में लायबल है टैक्स पे करने को, इवन दो अनरजिस्टर्ड सप्लायर है उसने ये कंप्लायंस किया हो, सेल्फ इनवॉइस इशू किया हो, मैंने तो अभी तक नहीं देखा है, 1-2 कंपनीज को छोड़ करके, बड़ी कंपनी जो है। तो देयरफॉर ये नॉन कंप्लायंस एरिया है, आप इसे इंश्योर करें अपनी कंपनी में। जब भी आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, जो मैंने शुरू में ही डिस्कस किया था चार्जेबिलिटी के टाइम, सेक्शन 93, 94, यही रीजन था कि यदि आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर है आपका, तो आपको सेल्फ इनवॉइस इशू करना है, नहीं तो आप नॉन कंप्लायंट हो जाएंगे। सिमिलरली आप यदि किसी भी सप्लायर को पेमेंट करते हैं ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, आपको क्या इशू करना है? सेल्फ इनवॉइस। लेकिन जब आप उसको पेमेंट करते हैं तो और वो उस केस में आपको पेमेंट वाउचर इशू करना है, ध्यान रखिएगा। हालांकि सारी कंपनीज करती हैं, कोई भी पेमेंट हो तो पेमेंट वाउचर इशू करती हैं, लेकिन यहाँ पे लॉ ने स्पेशली कहा है तो आपको उसके हिसाब से करना पड़ेगा। और पेमेंट वाउचर का जो फॉर्मेट है लॉ ने रूल में प्रिस्क्राइब किया हुआ है,
तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। रूल 46 से लेके 55A तक आप देखेंगे तो ये सारे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं डॉक्यूमेंट्स के, टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर, सेल्फ इनवॉइस, ये सारे इनवॉइसेस, सारे डॉक्यूमेंट्स का वहां पे फॉर्मेट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब एक क्रक्स है, यदि आपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, देखिए अनरजिस्टर्ड सप्लायर से आपने यदि गुड्स या सर्विस लिया तो आपको बेसिकली 3 डॉक्यूमेंट इशू करना होता है। पहला सेल्फ इनवॉइस, दूसरा पेमेंट वाउचर, और तीसरा ई वे बिल। ई वे बिल मैं जानबूझ के बता रहा हूँ क्योंकि ई वे बिल अभी हमारा टॉपिक नहीं है, कभी मौका मिलेगा अनिल जी से रिक्वेस्ट करूंगा। ई वे बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, या सर डॉक्यूमेंटेशन। आई वुड जस्ट इंटरप्ट, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब ज्वाइन कर लीजिए और मीटिंग बस ओवर होने वाली है। तो देयरफॉर उस केसेस में हम वो डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे अनरजिस्टर्ड सप्लायर है आपका, आप रिवर्स चार्ज में टैक्स देने के लिए बाध्य हैं, तो आपको ये तीनों चारों डॉक्यूमेंट इशू करना ही पड़ेगा। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री होनी है ये आप सबको पता है अच्छी तरह। बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो मेंटेन करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास मिनिमम 6 लेजर तो होने ही चाहिए, आईजीएसटी के, सीजीएसटी और एसजीएसटी के। और ये 6 लेजर एक तो आउटपुट लाइबिलिटी के लिए होनी चाहिए और दूसरा इनपुट जो आप लेते हैं वो होना चाहिए। तो ये 6 लेजर हर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओपन होने चाहिए ताकि आप क्लियर कट इसकी अकाउंटिंग कर पाए, इसका पूरा डेटा लेजर मेंटेन कर पाए और आपके बुक्स में ये लेजर में हर ब्रेकअप हर चीज अवेलेबल हो। देयरफॉर ये 6 लेजर आपके पास होने चाहिए। और जो अकाउंटिंग होती है ये तो बहुत ही इजी है, आप लोगों को क्या बताना, लेकिन फिर भी मैं ब्रीफ कर दूं कि जब भी एक्सपेंसेस होता है तो रिकॉर्ड करने के लिए आप क्या करते हैं, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, क्रेडिटर को क्रेडिट करते हैं, और इसके बाद जो फिर जब उनकी लाइबिलिटी और लाइबिलिटी जब कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम आप क्या करते हैं, इनपुट्स को आप डेबिट करेंगे और आउटपुट लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे और फिर लाइबिलिटी को पे कर देंगे बैंक से। यही जनरल एंट्री है, ये आपको मेंटेन करनी चाहिए। अब आता है कि पेमेंट जो आप करते हैं वो कैसे करेंगे, उसका मूड क्या है। देखिए हर चीज वैसे जीएसटीएन पोर्टल पे ऑटोमेटेड है, बट फिर भी मुझे लगता है कि इस केस में आपको ये जानना मैंडेटरी है कि आरसीएम लाइबिलिटी की जब पेमेंट करनी होती है हमेशा वो कैश में होती है, आप उसको आईटीसी यूटिलाइज नहीं कर सकते उसको पेमेंट करने के लिए। सो इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो आईटीसी पड़ा होता है उसका पेमेंट ये आरसीएम लाइबिलिटी के लिए यूज नहीं कर सकते। आपको आरसीएम लाइबिलिटी के लिए सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट से कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट करना होगा और उस कैश लेजर से ये लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी होगी, एंट्री पोस्ट करनी होगी। वो आप ऑनलाइन भली भांति करते होंगे यदि आपने पे किया है कभी 3B बढ़ा होगा तो ये हमेशा कैश लेजर से ही पेमेंट होता है, लेकिन पे करने के बाद आप इसका क्रेडिट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन कम्स कि क्रेडिट जो है सेम मंथ में ले सकते हैं या नेक्स्ट मंथ में ले सकते हैं। तो देखिए लॉ में कहीं नहीं लिखा है कि नेक्स्ट मंथ में ले सकते हैं, इवन आप सेम मंथ में ले सकते हैं, लेकिन बेटर है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर क्लीन मेंटेन करने के लिए बेहतर है कि आप उसको नेक्स्ट मंथ में ही लें, एक मंथ में पे करें या दूसरे मंथ में उसका आईटीसी लेते रहें, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लियर मेंटेन हो जाती है। तो ये अभी तक यही रहा, ये मैंने आपके लिए तैयार किया है, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपको एक बार ब्रीफ करा देता हूँ। सबसे पहले तो ये था कि ये जो आरसीएम है, आरसीएम की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो आरसीएम कभी भी लेवी होता है तो ये अनऑथराइज नहीं होता है, ये बाय नोटिफिकेशन नहीं आता। इसकी चार्जेबिलिटी जो है वो चार्जिंग सेक्शन में ही होती है, जैसे सबसेक्शन 3 और 4 ऑफ सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट है। कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन आईजीएसटी एक्ट का सबसेक्शन 3 और 4 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट है, तो वहां से स्टार्ट होता है। उसके बाद जो इंपोर्ट केसेज हैं, इंपोर्ट जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से जो इंपोर्ट होते हैं वो भी नोटिफाइड है अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, वो हमने अपने पढ़ा। अब जो ये रिवर्स चार्ज होता है ये गुड्स पे भी लगता है और सर्विस पे भी लगता है। गुड्स पे कब लगता है, तो गुड्स पे केवल 7 केसेज हैं, 7 केसेज मतलब सीरियल नंबर हैं जो नोटिफाइड है अंडर नोटिफिकेशन नंबर 4 ऑफ 2017। वो 7 मेनली जो है एग्रीकल्चरिस्ट से यदि आप कुछ खरीदते हैं, सिल्क यार्न वगैरह जो भी खरीदते हैं, तो उस पर आपको आरसीएम में टैक्स पे करना होता है। यदि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, सपोज आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको उस पर आरसीएम में टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन
यदि जी आरसीएम की लाइबिलिटी आपके ऊपर आती है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। देयरफॉर वो सारे गुड्स के केस में यदि आप प्रोक्योर कर रहे हैं एग्रीकल्चरिस्ट से सिल्क यार्न वगैरह जो भी ले रहे हैं, या प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स वगैरह बाई कर रहे हैं, तो उस केसेस में भी आपको आरसीएम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है सर्विस के केसेस में, जैसे आपने पढ़ा नोटिफिकेशन नंबर 13/2017, उसके केसेस में 16 लाइन आइटम्स हैं। उसके अंदर डिफरेंट केसेस मेंशन है कि कौन सी सर्विस है जिसपे आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है। तो सबसे पहला नाम आता है जीटीए की सर्विस जो प्रोवाइड होती है। दूसरा आता है लीगल सर्विस जो एडवोकेट्स प्रोवाइड करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोवाइड करते हैं वो नहीं, एडवोकेट्स जो एडवोकेट्स रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने कॉरेस्पॉन्डिंग क्वालिफिकेशन ऑब्टेन किया है, वो यदि प्रोवाइड करते हैं कि उनकी सर्विस ही केवल आरसीएम में कवर्ड है और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सर्विसेज कवर नहीं है, ध्यान रखें आप। दूसरा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या स्पॉन्सरशिप सर्विस आप कह लें, या गवर्नमेंट से कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इट मीन्स हम कोई भी पेमेंट वगैरह करते हैं किसी भी सर्विस के लिए गवर्नमेंट को, तो उस पर भी आरसीएम में टैक्स देना होता है। हम का मतलब यहाँ पे बिजनेस एंटिटी से है। अब बिजनेस एंटिटी डिफाइन नहीं है, तो इसलिए मान के चलिए कोई भी जो बिजनेस करता है दैट इज बिजनेस एंटिटी। नेक्स्ट आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यदि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दे रही है, यानी हम सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को हमने रेंट पे लिया है, तो उस केसेस में हमें रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ता है यदि हम जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो। नेक्स्ट आ गया, जैसे मैंने बिल्डर्स के लिए 5 केसेस मेंशन किए, उसमें 2 केसेस सर्विस के लिए हैं और 3 केसेस गुड्स के लिए हैं। वो गुड्स वाले जो मेंशन है वो आगे मैंने बताया कि वो अंडर सेक्शन सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9 में वो नोटिफाइड है। तो यदि अनरजिस्टर्ड का केस मैं बात करूं तो केवल 3 ही केसेस हैं, और वो भी रियल एस्टेट सेक्टर में। उसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर को छोड़ के और कोई कवर्ड नहीं है, अभी तक नोटिफाइड नहीं है। तो आप मान के चलें जो अनरजिस्टर्ड जो 5000 का ओरिजिनली एग्जाम्पशन था वो रिसीव्ड हो गया है, और आज के केस में अनरजिस्टर्ड से आप कुछ भी खरीदते हैं, मैं आप अदर देन बिल्डर या प्रोमोटर, तो वो सारे केसेस में रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होता है। उसके अलावा जो केसेस हैं टीडीआर वगैरह, उन सब केसेस में यदि 9 सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 9 में नोटिफाइड है ये 16 केसेस, तो ये कवर्ड है और इस पे हमें पे करना होता है। 16 में 2 बिल्डर के लिए ही है। फिर आप कोई डायरेक्टर, कंपनी का डायरेक्टर है, डायरेक्टर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, फी वगैरह पे कर रहे हैं, तो वहां पे आपको आरसीएम में टैक्स पे करना है ना हो। यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन आएगा कि डायरेक्टर जो है यदि वो इम्प्लॉई है, तो इम्प्लॉई है तो एप्लीकेबल होगा कि नहीं। यदि इम्प्लॉई है तो इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप मान के चलें कि डायरेक्टर है तो उसको आरसीएम में पे करवा दीजिएगा और आईटीसी ले लीजिएगा बाद में। इंश्योरेंस एजेंट, रिकवरी एजेंट सर्विसेज, म्यूजिक कंपोजर, ऑथर, फोटोग्राफर, ये सारी सर्विसेज भी आरसीएम में कवर्ड है। फिर डीएसए की सर्विसेज, बिजनेस फैसिलिटेटर की सर्विसेज, ये सब कवर्ड है। अब सिक्योरिटी सर्विसेज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी सर्विसेज लेती है, तो उस केसेज में उनको पे करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये 1 जनवरी 2019 से आया था। सेम रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कैब वगैरह, ये सारी सर्विसेज हैं, इसमें रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। इस पे आप इंश्योर करिएगा आरसीएम में टैक्स पे करना। बाकी लैंडिंग सर्टिफिकेट तो नॉर्मली बहुत ही कम हमारे क्लाइंट्स होते हैं, बट फिर भी इस केस में भी एप्लीकेबल है, तो ध्यान देना पड़ेगा आपको यदि कोई क्लाइंट आता है फ्यूचर में। फिर यदि किसी भी आउट ऑफ इंडिया से कोई सर्विस आप लेते हैं, तो उन केसेस पे जो इंपोर्टर ऑफ सर्विस है उसको आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। यदि सिमिलरली ओशन फ्रेट है, यदि बाहर आपका वेसल का ऑनर है, वहां से आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, तो यानी ये गुड्स इंपोर्ट के केस में केवल ओशन फ्रेट पे ही आरसीएम की लायबिलिटी एप्लीकेबल है, और इंपोर्टर को ओशन फ्रेट पे आरसीएम में टैक्स पे करना होता है। इसके अलावा अनरजिस्टर्ड पर्सन वाला मैंने आपको बता ही दिया कि केवल बिल्डर को पे करना है, वो भी 3 केसेस में जो अंडर नोटिफिकेशन नंबर 11 ऑफ 2017 नोटिफाइड है। फिर रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स आपको बता दिया कि यदि आरसीएम की लायबिलिटी उस पर बनती है तो कंपल्सरी उसको रजिस्ट्रेशन लेना है। वो थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट नहीं ले सकता, उसको अंडर सेक्शन 24 उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना ही है। फिर टाइम ऑफ सप्लाई मैंने बता दिया कि इन केस ऑफ गुड्स के केस में 30 डेज मैक्सिमम मान के चलें, या पेमेंट या 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस आपको वो लेना है, पेमेंट करना है आरसीएम की लायबिलिटी। सर्विसेज के केस में सिंस उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम दिया है तो 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट जो भी अर्लियर है उसमें आपको टैक्स पे करना है। रिवर्स चार्ज में इनवॉइसिंग के बारे में बता दिया। यदि आप ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सपोज जीटीए की सर्विस, आपका क्लाइंट ट्रांसपोर्टर है,
वो जीटीए की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और जीटीए पे टोटल जो लाइबिलिटी है वो रिसीवर को आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना है। तो उस केस में जो इनवॉइस जीटीए जो भी इनवॉइस इशू करता है, हालांकि उसके लिए कोई भी कंसाइनमेंट नोट भी इनवॉइस बन जाता है यदि सारी डिटेल्स उस पर डाली गई है, तो उस केस में ये जरूर लिखेगा उसमें कि रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है, देयरफॉर रिवर्स चार्ज में रिसीवर टैक्स पे करेगा। तो बीइंग अ सप्लायर ऑफ सर्विस, यदि आप रजिस्टर्ड पर्सन है और आप टैक्स इनवॉइस इशू करने के लिए बाध्य हैं, तो उस केस में आपको ये स्पेशल जो वर्ड्स हैं वो मेंशन करना पड़ेगा। यदि सप्लायर ऑफ सर्विस अनरजिस्टर्ड है तो उसको कोई डॉक्यूमेंट जो भी इशू करता है दैट विल बी डीम्ड एज सफिशिएंट। ये लॉ में कहीं नहीं लिखा है, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। सिमिलरली यदि आपका रिसीवर जो है, रिसीवर को भी यहाँ पे लॉन है, जो सेक्शन 31 है ऑफ सीजीएसटी एक्ट है, उसने लाइबिलिटी इंपोज करी है कि आपको भी सेल्फ इनवॉइस इशू करना है यदि अनरजिस्टर्ड सप्लायर है आपका, तो उनको भी सेल्फ इनवॉइस इशू करना है। कब करना है? ऑन द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस। सिमिलरली वो जब पेमेंट करते हैं तो पेमेंट वाउचर इशू करना है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पेमेंट वाउचर में मुझे लगता है हर कंपनी इशू करती है। छोटे मोटे आप ध्यान रखेंगे, यदि छोटे मोटा प्रोप्राइटर्स या पार्टनरशिप फॉर्म्स हैं तो वहां पे आप ध्यान इंश्योर करेंगे कि वहां भी पेमेंट वाउचर इशू हो। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स का जो फॉर्मेट है वो दिया हुआ है रूल 46 टू रूल 55 के बीच में, आप देख सकते हैं सब चीज का फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में इशू होना चाहिए। यानी वो कंटेंट्स होने चाहिए सेम फॉर्मेट का, मतलब कंटेंट्स वो चीजें मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है जो वहाँ पे होनी चाहिए। एंट्रीज के बारे में बता दिया, सेपरेट लेजर्स मेंटेन, सेपरेट लेजर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको मेंटेन करना चाहिए, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आउटपुट लायबिलिटी और इनपुट टैक्स के रिस्पेक्ट में। और दूसरा बता दिए कि पेमेंट कैसे होगी, तो हमेशा जो जीएसटी लायबिलिटी की जो पेमेंट आप करेंगे वो हमेशा कैश से पेमेंट करेंगे, कैश लेजर से पेमेंट होती है उसकी। हालांकि पे करने के बाद आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, आप क्रेडिट लेजर का यूज नहीं करेंगे कैश लेजर का पेमेंट करने के लिए, ये जीएसटीएन भी अलाउ नहीं करेगा आपको। लेकिन ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा बस। थैंक यू वेरी मच। आपको कोई क्वेरी है, कुछ है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल कीप अनदर सेशन कंटिन्यू। अनिल जी, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। मुझे लगता है कि ये काफी चीजें अगर आपको किसी क्लियर हो मेंबर गई की कोई होंगी। क्वेरी आपके है तो वो पूछ सकते हैं, राइट कर सकते किसी को कोई हैं क्वेरी चैट है? बॉक्स में। क्वेरीज मेरे ख्याल से अनिल जी, जब लास्ट मीटिंग में कुछ क्वेरीज वगैरह आई थी, बट आई गेस अभी जो नया सेशन शुरू हुआ है उसके अंदर वो क्वेरीज हट गई है वहां से ना। राइट राइट राइट। तो एक बार अनिल जी आप एक काम करिएगा, जो भी क्वेरीज वगैरह यहाँ पे मेंशन हुई थी लास्ट वाले में, एक बार वो चेक कर लेंगे। उन क्वेरीज को राम अक्षय जी हम एक बार डिस्कस करके, और फिर जिसकी क्वेरी थी उनको वी विल गेट बैक टू देम। यस यस यस। बाकी राम अक्षय जी मतलब आप ये लगाइए, मतलब व्हाट वी हैव गॉन थ्रू इज कि नॉर्मली जितने भी जीएसटी में टॉपिक्स हैं उसमें जो आरसीए में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। तो इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आपने जिस मतलब स्मूथनेस के साथ एक एक पॉइंट को यू हैव कवर्ड एक्सटेंसिवली, सो रियली इट वाज रियली very interactive and we really enjoyed this session. Hats off to you for making this complex topic very simplified. Otherwise क्या होता है कि हम लोग प्रोफेशनल्स व्हाट वी डू इज हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक को और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। आवर जॉब इज टू मेक द कॉम्प्लेक्स टॉपिक इजी, सो व्हाट यू हैव डन इज रियली कमेंडेबल जॉब। सो थैंक यू राम अक्षय जी फॉर स्पेयरिंग योर टाइम एंड कमिंग टू दिस प्रोग्राम। एक क्वेरी है शीतल गुप्ता जी की। इंश्योरेंस एजेंट एंड इंश्योरेंस कंपनी बोथ आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, whether self invoice is raised by insurance agent? नहीं, कंपनी को रेज करना है ना, यहाँ पे रिसीवर को रेज करना है हमेशा। ओके, तो रिसीवर सर्विस जो एजेंट तो प्रोवाइडर है यहाँ पे, आप देखेंगे तो एजेंट इज प्रोवाइडर ऑफ सर्विस, रिसीवर ऑफ सर्विस इज इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी हैव टू रेज दिस क्वेरी। आप देखें यहाँ पे, मैं आपको वो स्लाइड भी दिखाता हूँ फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। देखिए, सर्विस सप्लाइड बाय इंश्योरेंस एजेंट। आप देखिए सप्लायर ऑफ सर्विस वाले कॉलम में देखिए इंश्योरेंस एजेंट का नाम है। रिसीवर में कौन है? जो इंश्योरेंस बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, यानी इंश्योरेंस कंपनी। सो देयरफॉर यहाँ पे लायबिलिटी
responsibility to raise self-invoice is on the insurance company, not on the agent. Okay. So एक query और है, reverse charge applicable on payment made to royalty to directors as author of the books by publisher of books. नहीं समझा नहीं, एक मिनट. Reverse charge applicable on payment made as royalty to doctor as author of books by publisher of books. हाँ तो very simple. Who has to pay RCM tax? Publisher of books. Publisher of books, correct. पब्लिशर Because यहाँ पे जो रॉयल्टी की पेमेंट कौन कर रहा है? पब्लिशर कर रहा है. Correct. रॉयल्टी की पेमेंट कौन कर रहा है? पब्लिशर. तो पेमेंट पब्लिशर कर रहा है. He has to pay the tax. Because कस्टमर तो वही है ना. जी जी, वो तो डॉक्टर ने एक तरह से सर्विसेज दी है जिसका पेमेंट पब्लिशर कर रहा है. Yes. तो पेमेंट पब्लिशर has to pay tax on RCM. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. तो मेरे ख्याल से जो अभी इस वाले चेक बॉक्स में क्वेरीज है वो शायद सारी आ चुकी है. पिछले वाले चेक बॉक्स की क्वेरी एक बार चेक करके फिर हम डिस्कस कर लेंगे. राइट राइट. उसमें काफी सारे क्वेरीज थे. आई थिंक 10-12 क्वेरीज थी. हाँ, 5-6-7 क्वेरीज थी. तो इस सेशन को हम अनिल जी फिर यहाँ एंड करें. हाँ सर, एंड करते हैं इस सेशन को. तो एंड करते हैं सेशन का. और थैंक यू सो मच. और आई वुड नाउ रिक्वेस्ट सौरभ राघव जी. ही इज अ वेरी डायनामिक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. Very good friend of mine. Deepak ji, so I would request Saurav Raghav ji to continue the second session proceedings. Saurav Raghav ji, please. दीपक जी, सर इसमें दोबारा लॉगिन तो नहीं करना? नो. दीपक जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ. आरसीएम के ऊपर जितने आसानी से मैंने आरसीएम को समझा है ना राम अक्षय जी के द्वारा, ऐसा मतलब एक मेरे लिए हुआ था आरसीएम, लेकिन राम अक्षय जी ने इतने अच्छे वे में उसे समझाया है शुरू से लेके लास्ट तक, कहाँ से ओरिजिन था और किस किस पे एप्लीकेबल है. इतना क्लियर हो गया माइंड में कि मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम राम अक्षय जी द्वारा रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए हमारे चैप्टर में. अनिल जी एक काम करेंगे हम लोग सर से रिक्वेस्ट करेंगे सर कि थोड़ा अवेलेबल रहें, थोड़ा टाइम निकालें. क्योंकि सर ने जैसे बोला है कि ई वे बिल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक बार हम इस पे भी अपना एक बार मीटिंग कंडक्ट करें तो ये बहुत बिल हो गया. अनिल जी, ई इनवॉइसिंग का जो पूरा एरिया है अभी जिसमें 20 करोड़ वालों के ऊपर भी एप्लीकेबल है, तो अगर ई इनवॉइसिंग भी हम डिस्कस कर सकते हैं. तो यही है कि हर 10-15 दिन में रामकृष्ण जी, हम हर 10-15 डेज में वी आर ट्राइंग कि हम लोग प्रोग्राम करें और उसमें राम अक्षय जी आप अवेलेबल रहें टाइम स्पेयर करके. सर अनिल जी एंड दीपक जी और सौरभ जी, आप तीनों को मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा. नॉलेज के लिए कभी भी आप मेरे से कहें, मैं तैयार हूँ, बशर्ते थोड़ा सा 5-6 दिन 1 सप्ताह पहले मुझे इन्फॉर्म कर दें. मैं प्रॉपर टाइम निकाल लूंगा, बिकॉज मुझे भी डीप रिसर्च करना होता है. डीप रिसर्च करके अनिल जी सर मेरे पास ना आज और मैं अवेलेबल हूँ. मैं अवेलेबल हूँ जब भी आप. राम अक्षय जी, अनिल जी की खास बात है, ये खुद डायमंड है, तो ये खुद भी ना अनकट डायमंड लेके आते हैं. ये खुद भी डायमंड है और ये रॉ डायमंड लेके आते हैं. रॉ डायमंड की तो आपको पता ही है कि कीमत क्या है. नो प्रॉब्लम. तो नॉलेज के लिए बेहिचक रहें. कभी भी किसी भी टॉपिक पे आपको इंडस्ट्री से फीडबैक ले रहे हैं, जहां से मोस्ट जिस पे ज्यादा डिमांड होगी वो टॉपिक हम कवर करेंगे. आरसीएम मैंने इसलिए कवर किया, पहली बार कवर किया, क्योंकि मैंने खुद देखा कंपनी में जब जाता हूँ बड़े परेशान रहते हैं आरसीएम के केसेस में, और नॉन कंप्लायंसेस मैंने बहुत चेक किया है. ठीक बात. तभी मैंने अनिल जी को मैंने इसके बारे में बताया कि आरसीएम ही लोग बेस्ट है, क्योंकि हमारे मेंबर्स ज्यादा इंडस्ट्री में हैं, तो उनपे ये एप्लीकेबल होता है. नहीं तो कल को ऊपर कंपनी मैनेजमेंट से अननेसेसरी प्रेशर आता है. सो इट्स बेटर कि वो एक क्लैरिटी होनी चाहिए. सर हम जितने भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं सारे हम चूज करेंगे, और हम क्योंकि सिंपल टॉपिक्स के ऊपर तो बहुत प्रोफेशनल्स बात करते हैं, हम लोग सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स ही उठाएंगे और उन्हीं के ऊपर बात करेंगे हम. करेक्ट, बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल. एक आप जो भी है चूज करें. एक रिक्वेस्ट और है सर, ये स्लाइड प्लीज हमें भी शेयर कर दीजिएगा. एक बार मतलब 2 बार रिवीजन तो हो गई है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे तो परमानेंट हो जाएगा सर. अरे बेहिचक रहे, मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन ध्यान रखें आप इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए. श्योर सर. नो सर, नो सर. ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा आपके बेनिफिट के लिए. आप सबको मेल कर सकते हैं. श्योर सर. जी प्लीज कर दीजिएगा सर. हाँ. और सर रामाक्षय सर मैं एक बात और बोलूंगा कि सौरभ राघव जी आप कंटिन्यू करें नेक्स्ट सेशन. अब सेकंड सेशन को थोड़ा बढ़ा लें आगे. वो लॉगिन करना है क्या अलग से?
नहीं नहीं, हाँ अच्छा सर, राम अक्षय सर, कंटिन्यू मेरे को करते एक बार और आपको थैंक यू बोलना है। मेरे पास ना कोई स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं सर एग्जाम में आने वाला टॉपिक है और बहुत अच्छे से कवर किया आपने। वाकई जब हम भी पढ़ते थे और आज तक भी हम, मेरे को भी रिवर्सल बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, बट बहुत सिंप्लीफाई तरीके से आपने इसको बहुत अच्छे से, मतलब नॉलेजेबल 1 घंटे का इतना अच्छा सेशन आपने दिया है, बहुत अच्छा लगा। और यही रिक्वेस्ट है हमारे सारे मेंबर्स की तरफ से, सारे स्टूडेंट्स की तरफ से, तो कि प्लीज थोड़ा आप 15 दिन में, 20 दिन में हमें थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेयर कीजिएगा। और बिल्कुल, अनिल सर आपका काम है सर को थोड़ा सा मतलब जी मोटिवेट sure। करके, सर से रिक्वेस्ट करके हमारे लिए लेके आने। मैं आपको बता दूं, आपका 2018 में मैंने आपके NIRC में भी दिया है लेक्चर, वहाँ जो दिल्ली में है, वहाँ लोधी पे रोड। दिया था मैंने लेक्चर। फिर आपका जो न्यू मेंबर्स क्वालिफाइड होके आए थे नोएडा में, तो नोएडा में भी मैंने हाँ, प्रोग्राम दिया था आपका। जी जी तो जी। नए CMH बन के आए थे, करीब 250 बच्चे थे वहाँ पे न्यूली क्वालिफाइड। तो वहाँ भी मैंने प्रोग्राम दिया था, वो 2000 आई थिंक कोविड के पहले दिया था, जस्ट ओके। कोविड अब सर आउटब्रेक हम हुआ था ट्राई तो। करेंगे एक ऑफलाइन सेशन में भी आपको बुलाएं एक बार, मतलब और क्योंकि अभी हमारा बहुत टाइम बाद ये एक प्रोग्राम मतलब हमने स्टार्ट किया है ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स के बिल्कुल ऊपर। सर। तो अभी एक सेशन एक हम ऑफलाइन में रखेंगे, तो उसमें भी आपको सर हम बुलाएंगे, तो आप